अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ कामरान और आज मैं जो नया लेसन आपके लिए लेकर आई हूं वो इंग्लिश से रिलेटेड है, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वर्ड आपने कई दफ़ा सुना होगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसी से रिलेटेड मैंने सोचा आज की वीडियो में बनाती हूँ, जो कि मैंने कोशिश की कि मैं बहुत डिटेल में समझा सकूँ। तो चलते हैं लेसन की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। द टर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच refers to the role a word play in a sentence. And like any workplace or TV show with an assembled cast, these rules were designed to work together. Read on to learn about the different parts of speech that the words we use everyday life fall into and how we use them together to communicate ideas clearly. So basically हर वर्ड जो कि हम लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं वो स्पीच का एक हिस्सा है, पार्ट है स्पीच का। जनरली या डेली लाइफ में अगर हम टीवी शो की बात करें या डेली रूटीन की बात करें, जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ हाउ वी कैन कैटेगराइज कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखती है। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन। सो नाउन यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट, ये हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं ये वर्ड। सो व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट और object, or you can say noun is a naming word. Basically anything that names a thing is a noun. Whether you are talking about a basketball court या San Francisco, it is a name of a place, या Cleopatra, it is a name of a personality, or your self preservations. These are all called noun. Now how many types of noun we have? First of all we have common nouns. So the most nouns are common nouns. Common nouns refers to the people, place and things in general, like chair or dog. Any noun that is not a name is a common noun. For example, teacher, but we are not taking the name of a teacher that Miss Shafaq or Miss Maryam, whatever is. We cannot categorize the name. So if it is a teacher, so it is a common noun. Car, which color car is this, which color model car is this, we are not categorizing, so ये common noun है। इसी तरीके से music, which music it is, we are not specifying it, so this is a common noun. Danger, receipt, for example we can use in a sentence, have you seen my dog, or which dog we are talking about, we don't know, so we cannot identify जब तक कि वो proper ना हो। इसी तरीके से the books are on your desk, so which books we are talking about, so these are all the common noun. Now come to the proper noun. Name of people, place or any organization are the proper name. Your name is a proper noun. London is a proper noun. United Nations is a proper noun because your name is not of anyone other name. We cannot say that in the world, but आप अपने नाम से ही पुकारे जाते हो, इसीलिए हम किसी जगह का अगर नाम ले रहे हैं तो हम प्लेस नहीं कह रहे हैं, मैं उस जगह का नाम ले रही हूँ लंदन। इसी तरीके से अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रही हूँ तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर नाम ले रही हूँ, मैं उसको कोई कंपनी नहीं कह रही हूँ, ठीक है। एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज? प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल जेन, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, आइंस्टाइन, सुपरमैन, Games of Thrones or Shakespeare. So these are all the proper noun. Now the concrete noun. Concrete noun are the physical thing that you can touch. Means any of the physical thing you can touch. जो भी physical चीज़ आप अपने हाथों से छू के देख सकें, these are the concrete noun. For example, man, rice, head, car, furniture, mobile phone, etc. अब अगर examples की बात करें, how many stars are there in the universe, या have you met James Bond, और pour the water down the drain। अब यहाँ पर अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स को हम बेसिकली फिजिकली टच नहीं कर सकते, बट फिजिकली वो एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट्स वाई वी कैन से द वाटर इज़ कॉन्क्रीट नाउन, और जेम्स बॉन्ड इज़ अ पर्सन ऑफ अ पर्सनैलिटी, नेम ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो ये सारे कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं जो किसी मटीरियल से फिजिकली बन रहे होते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द ऑपोजिट ऑफ द कंक्रीट नाउन्स. दे आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच. ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते. ऑल राइट, विच यू कैन नॉट टच. आप सिर्फ उसको अज्यूम कर सकते हैं अपने ख्यालात में. लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द आइडियाज़, कॉन्सेप्ट और एनी फीलिंग. इसको आप वर्ड्स में नहीं बता सकते. लाइक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप किस वर्ड से प्रेजेंट करोगे? आप अपने एक्सप्रेशन से, अपनी फीलिंग से शो कर सकते हो. करेज की अगर हम बात करें, डेंजर है, ट्रुथ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेंटेंस, ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ. या हु किल्ड प्रेसिडेंट कैनेडी इज़ अ रियल मिस्ट्री. Some things or sometimes it takes courage to tell the truth. Or their lives were full of sadness. So strength, mystery, courage, truth and sadness, ये सारे क्या हैं? Abstract noun हैं. Countable noun, as you can see from the name, which are count noun. You can count or countable noun. काउंटेबल नाउन्स हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. दोनों फॉर्म इसकी हो सकती हैं, बट इट कैन बी काउंटेड. बॉल, बॉय, कैट, पर्सन. इफ़ यू हैव ओनली $5, लाइक 5 is countable, like 4.6 billion years ago is a countable. Or there are lots of people but we don't have a car, so a car is countable. So countable is any noun, any name जिसको आप count कर सको, जो limited हो. All right. Now let's proceed. Uncountable noun, it's opposite of countable. You cannot measure or you cannot identify the measurement proper. और रूल इसके लिए क्या होते हैं? We never use countable, uncountable noun with the indefinite article, यानी आ और एन उससे पहले आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि आपको उसकी क्वांटिटी का नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल वाटर, हैप्पीनेस, चीज़. अब वाटर अगर पर्टिकुलर जार में है जिस पे ml शो हो रहा है, प्रॉपर उसकी मेजरमेंट है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर्स यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अ लॉट ऑफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई क्योंकि इसमें एम्पियर मेंशन नहीं है. सिमिलरली यू हैव एनी वर्क फॉर मी टू डू. एनी वर्क, एनी मीन्स वी डू नॉट हैव द स्पेसिफिक आइडिया कि हम कितना काम कर रहे हैं. एनी वर्क वी कैन नॉट काउंट. सिमिलरली मैनी एशियंस ईट राइस. मैनी, सो हाउ मैनी, हाउ मच पीपल, there is no amount given over there. So that's why we can say that these are uncountable noun. Now the collective noun. A collective noun denotes a group of individuals. For example, class, group of students. Definitely class is a single word, but definitely in our class you have a group of student. Pride, फखर की अगर हम बात करें, so it's a group of loin, or you can say the group of awards. Fine. Similarly crew की अगर हम बात करें, so this is a group of sailors, soldiers, sailors, like this. Fine. Now rules क्या है इसके लिए? collective nouns can be treated as a singular or plural. दोनों तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है. His family live in different countries. Finally हम यहाँ पे his की बात कर रहे हैं तो हम उस शख्स की फैमिली की बात कर रहे हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रही है. बट फैमिली is itself a collective noun. The new company is a result of merger. Now you can say company is a group of like उसमें offices होते हैं, उसमें departments होते हैं अलग अलग. एक ऐसे ही singular company नहीं बन जाती. So this is also itself a collective noun. Then the board of directors will meet tomorrow. The board of directors means उसमें कोई एक डायरेक्टर नहीं होगा, उसमें definitely 4 to 5 या 6 members होते हैं जिसकी पूरी कमेटी होती है. So these are all the examples of collective nouns. Now the compound nouns. Compound noun is a noun that is made of 2 or more words. Most compound noun are noun plus noun or adjective plus noun. Each compound noun acts as a single unit and can be modified by adjectives and other nouns. Compound nouns have 3 different forms. Open or spaced. Space between words like bus stop, or hyphenated, you can say hyphen between words mother-in-law, or close or solid, no space or hyphen between the word like football. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं जैसे कैट फूड, ब्लैक बोर्ड, ब्रेकफास्ट, फुल मून,
वॉशिंग मशीन, सॉफ्टवेयर। सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये कंपाउंड नाउन को शो कर रहे होते हैं, जिसमें या तो दो वर्ड नाउन मिल रहे होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि एक एडजेक्टिव होता है और एक इसमें नाउन होता है। सम टाइम उसमें हाइफन लगाया होता है, सम टाइम नहीं लगाया होता। जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, उसको आप कंटिन्यू लिखोगे। कैट फूड है या डॉग फूड है, उसको आप सेपरेट करके लिखोगे। सिमिलरली ब्रेकफास्ट है, उसको आप कंटिन्यू लिख रहे हो, बट ब्रेक इज इट सेल्फ अ वर्ड, फास्ट इज इट सेल्फ अ वर्ड। तो ये दो नाउन या दो नाउन और एडजेक्टिव को मिला के एक कंपाउंड करके एक वर्ड बनता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड नाउन। नाउ द सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप कह रहे होंगे इतने सारे जो समझाएं ये क्या थे, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो। लेकिन सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो नाउन था। ये सारे नाउन की कैटेगरीज थी जो हमने अभी समझी, या नाउन की टाइप्स थी। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, विच इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर द वर्ड यूज substitute for specific nouns when the reader or the listener knows which specific noun you are referring to. Or you might say Jennifer was supposed to be here at 8. Then follow it with she is always late. Yeah, next time I will tell her to be here a half hour earlier. अच्छा, प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की स्पेसिफिकेशन में या नाउन को या किसी भी नाम को रिपीट करने के बजाय हम उसमें उसके रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि जेनिफर जो है वो लेट होगी, तकरीबन 8 बजे तक वो आएगी, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैंने कंटिन्यू किया है, देन शी इज़ ऑलवेज लेट, तो यहाँ पे मैंने शी इज़ का वर्ड यूज़ किया है, मैंने यहाँ जेनिफर का नाम दोबारा रिपीट नहीं किया। सिमिलरली अगर मैं आगे देखूँ तो मैंने वहाँ पे हर का वर्ड यूज़ किया है, वहाँ मैंने जेनिफर उसका नाम बार बार यूज़ नहीं किया। सो इस तरह के जो नाउन होते हैं, जब नाउन के रिपीटेशन के बजाय आप उसमें कोई वर्ड ऐड कर रहे होते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोनाउन इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट नाउन particularly. Now instead of saying Jennifer's name 3 times in a row, you substitute she and her and your sentences remain grammatically correct. ठीक है, अब यहाँ पे भी यही क्लेरिफिकेशन बताई है जो मैंने समझाई थी कि जेनिफर का नाम 3 दफ़ा रिपीट करने के बजाय एक ही लाइन में मैंने शी और हर का यूज़ किया है, तो ये सेंटेंस में ग्रामेटिकली भी ये सही है। तो शी और हर बेसिकली क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए। अब प्रोनाउंस की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे पॉसेसिव प्रोनाउन। A possessive pronoun is a pronoun that expresses position, ownership, origin, relationship. ठीक है, जैसे possess वर्ड से पता चलता है कि पोजीशन किसी भी चीज़ की पोजीशन या ओनरशिप को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स। दैट टॉय ऑन द शेल्फ इज माइन। ऑल द हाउसेस neighborhood look the same, but ours is the only one with a satellite dish. अब यहाँ पर देखें, माइन का जो वर्ड है ये शो कर रहा है ओनरशिप को, कि जैसे ये टॉय मेरा है, पोजीशन बता रहा है। सिमिलरली अगर अर्स की बात करें या अर्स हाउस की बात करें, तो यहाँ पे हम अपने घर की बात कर रहे हैं, हमारे घर की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो शोइंग द पोजीशन और द ओनरशिप। ऑल राइट, now the personal pronoun. Personal pronouns are the pronouns that we use to refer to people and sometimes animals. The pronouns it, they and them can also apply to the objects. For example, I, you, she, he, it, we, they, me, us and them. पर्सनल प्रोनाउन पर्सनली यूज़ होता है पीपल्स के लिए, समटाइम्स एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ माइस। So here I is a personal pronoun. The toaster gets really hot when it heats bread. It is here personal pronoun. Similarly, my cats are friendly, so you can safely pet them. So here you and them are the personal pronoun. Now the relatives pronoun. Relative pronouns connect dependent clauses to independent clauses like who, whom, which, what and that. For example, मैं कहूँ I need to find a person who can read Swedish,
ठीक है, तो यहाँ पर अब जी क्लॉज की बात हो गई, यानी दो क्लॉजेस को अलग अलग कर दिया गया। आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, ये एक क्लॉज हो गया। फिर दूसरा क्लॉज क्या है, डैश कैन रीड स्वेडिश। अब यहाँ पे बीच में जो मैंने वर्ड यूज़ किया दैट इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि दोनों सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। ठीक है, नाउ शी डज नॉट वॉन्ट टू ईट अ मील दैट इज़ टू स्पाइसी, यानी कि अब ये एक क्लॉज यहाँ तक कंप्लीट है। शी डज नॉट वॉन्ट टू ईट अ मील, दिस इज़ अ कंप्लीट क्लॉज और कंप्लीट सेंटेंस यू कैन से। बट दूसरा है डैश इज़ टू स्पाइसी, टू स्पाइसी इज अनदर सेंटेंस और अदर क्लॉज, बट इसको जो रिलेट कर रहा है दैट इज़ अ वर्ड दैट। Now, this book, which ends on a cliffhanger, is really excited. Means you can say this book is exciting. It is a word or it is a clause. It is a sentence, complete sense. लेकिन अगर यहाँ पर मैं which का word use कर रही हूँ, that is the relation, और these are relating to pronouns. All right. Now the reflexive pronouns. A reflexive pronoun is a pronoun used as an object of a verb that refers to the same person or things as the subject of the verb. For example, myself, yourself, itself, herself, himself, ourselves or themselves, जो कि बता रहा हो कि वो चीज़ is a pronoun that use object verb that refers to the same person, उसी person को belong कर रही है वो चीज़। जैसे Ken looked at himself in the mirror। ठीक है, अब कैन इज़ अ बॉय, तो बॉय के लिए हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। लाइक आई लाइक टू चेयर माई सेल्फ अप विद द डिज़र्ट। अब आई लाइक टू चेयर माई सेल्फ मतलब आई के लिए मैं अपने लिए जो वर्ड यूज़ करूँगी दैट इज़ माई सेल्फ। द सिली क्लाउन्स मेड फूल्स ऑफ दैम सेल्फ। क्लाउन्स के लिए मैं यूज़ करूँगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो मैं दैम सेल्फ यूज़ करूँगी। ठीक है, सो दीज आर ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Now the intensive pronouns. Intensive pronouns refer back to the subject in order to add emphasis. Intensive pronouns are identical in appearance to reflexive pronoun. For example, myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves. यानी कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि वो वापस से अपने ही पर्सन की तरफ रिलेट या एम्फेसाइज करता हुआ होता है। लाइक अगर मैं कहूँ आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ, अब माई हाउस तो हो गया लेकिन इसके आगे मैंने माई सेल्फ लगा दिया। ठीक, इसी तरीके से द चिल्ड्रन मेड द कुकीज़ दैम सेल्फ, चिल्ड्रंस ने खुद बनाई तो इसलिए ये हो गया दैम सेल्फ। नाउ इनडेफिनेट प्रोनाउन। एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन that does not specifically identify who or what it is referring to। ठीक है, मीन्स ये स्पेसिफिकली बताता नहीं कि वो किसको रिफ़र कर रहा है। लाइक सम, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबडी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल दिस नोट could have been written by anybody or someone at my lunch, the water splashed everywhere। तो यहाँ पर anybody, someone, everywhere क्या है, indefinite pronoun है, यानी कि ये पता नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, indefinite है ये। Now the demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are used to point to a specific thing, एक particular चीज़ को specify कर रहे होते हैं। For example, this, that, these or those। Like this is my favorite shirt, so this is a demonstrative word। इसी तरीके से I don't know what that is but it definitely isn't friendly, तो that यहाँ पे क्या है, demonstrative है। I need you to fix these यहाँ पे क्या है, demonstrative है। इसी तरह अगर हम बात करें interrogative pronouns की, तो interrogative pronouns are the pronouns used to ask questions about unknown people or thing, जिसमें हम इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं, जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं। लाइक हु, whom, what, which, whose। लाइक हु wrote this letter, what is an amphibian, या which is the correct answer। तो ये सारे क्वेश्चन प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। सो व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन? These express mutual relationships or actions. For example, each other, another।
ठीक है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। जैसे माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर, द टू फिशरमैन लव टू compete with each other। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन लाइक जो कि सिंगल वर्ड्स के लिए यूज हो डेफिनेटली, लाइक आई, ही, शी, इट, दिस, समवन, समथिंग और एनीवन। ठीक है, अब यहाँ पे somebody इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू टुमारो और दिस इज द बेस्ट। अब यहाँ पे somebody का वर्ड भी आपके पास जो यूज़ होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज़ होगा, क्योंकि एनीबडी नहीं, somebody की बात है। ठीक है, प्लूरल डेफिनेटली वो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा प्लूरल प्रोनाउन, लाइक वी, दोज, सेवरल। तो ये सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस को शो कर रहे हैं। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? Verb are the action words in a sentence that describe what the subject is doing along with nouns. Verbs are the main part of a sentence or phrase telling a story about what is taking place. In fact, without a verb, full thought can't be properly conveyed and even the simplest sentence. For example, वर्ब की अगर हम बात करें तो किसी भी काम को आप कहते हो कि वो वर्ब है, वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, मारिया सिंग्स हैव वन, एक्चुअली अ वर्ब कैन बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ विद अ सब्जेक्ट, यानी कि सिंग जो है वो इटसेल्फ क्या है, एक वर्ब है। वर्ब की भी डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है, रन, डांस, स्लाइड, जंप, थिंक। इनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि ये एक्शन को या एक काम को शो कर रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन वर्ब्स दैट ऑलवेज एक्सप्रेस डूएबल एक्टिविटीज़ दैट रिलेट और इफेक्ट समवन और समथिंग एल्स। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किसी और को रिलेट कर रही होती हैं, जैसे ही लव्स हिज मदर, दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। तो लव, रिस्पेक्ट, टॉलरेट, बिलीव, मेंटेन, ये सारे कौन से वर्ब हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। फिर अगर हम आ जाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब पे, तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन वर्ब्स दैट ऑलवेज एक्सप्रेस डूएबल एक्टिविटीज। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोइंग एंड एनी ट्रांजिटिव। लाइक आप बात करें अगर वॉक, लाफ कर्व, प्ले, रन, सो ये सारे जो हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। अगर मैं सेंटेंस में इनका यूज़ करूँ तो ही वॉक्स टू द पार्क, दे रन टू कैच द बॉल, शी लाफ्स ऑन हिम। तो ये सारे इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब। Auxiliary verb are also known as the helping verb and are used together with the main verb to show the verb's tense or a form of questions or negative. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है ताकि हमें उस वर्ब के टेंस का पता चले कि वो किस टेंस की बात कर रहा है, या क्वेश्चन है या नेगेटिव बनाते वक्त। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गो होम आफ्टर द फुटबॉल प्रैक्टिस। अब यहाँ पे विल शो कर रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, तो विल इज़ अ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। माइट यू डांस विद मी लेटर। अब माइट यहाँ पे बता रहा है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। नाउ यू डिड नॉट कंसिडर हिज फीलिंग। अब यहाँ पर डिड मुझे ये बता रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है बट ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, बेसिकली आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नाउ द स्टेटिव वर्ब। Stative verb can be recognized because they express a state rather than an action. They typically relate to the thoughts, emotions, relationships, senses, state of being, and the measurements. The best way to think about the stative verbs is that they are verbs that describe things that are not in actions. For example, Sarah doubts the doctor's opinion. I believe the doctor is right. शी वॉन्टेड अनदर ओपिनियन। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है बेसिकली, जो मतलब फिजिकली वर्क से इसका ताल्लुक नहीं है, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन इट इज़ अ वर्ब जिसका ताल्लुक आपकी किसी भी सेंस से है, स्टेट ऑफ माइंड से है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में बताया कि सारा को डाउट है डॉक्टर के ओपिनियन पे, सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, बट आई बिलीव
ये भी मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, या मेरी ये फेथ है, या मेरा ये यकीन है। और शी वांटेड, ये भी उसकी विश है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटिव वर्ब कहलाएंगे। नाउ द मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर जो एक्सप्रेस की जाती है वो एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ या परमिशन या ऑब्लिगेशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैन, मस्ट, मे, शुड, वुड, ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। जैसे आई शुड गो होम, अब यहाँ पे क्या हमारी ऑब्लिगेशन बताई गई, जाना चाहिए, एबिलिटी। यू मस्ट, अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन लगा दिया गया, ज़रूर। अली वुड नॉट रिकमेंड दिस बुक, यानी कि नहीं करनी चाहिए। या साहिल मे बी लेट, तो ये पॉसिबिलिटी में आ गया। परमिशन में अगर आ गए, माइट का वर्ड, अगर मे का वर्ड परमिशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या किस में आ जाती हैं, मॉडल वर्ब में आ जाती हैं। नाउ द फ्रेजल वर्ब। Phrasal verbs aren't single words, instead they are combination of the words that are used together to take in a different meaning to that of the original verb. ठीक है, अब ये फ्रेज की बात अगर हो रही है तो वो कंप्लीट एक फ्रेज के साथ, एक सिंगल वर्ड में यूज़ नहीं होते, ये एक फ्रेज के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं रन आउट, मेक आउट, हैंड आउट, थिंक थ्रू, या लुक फॉरवर्ड, या ब्रॉट अप, ये सारे आपके पास क्या है, फ्रेजल वर्ब हैं। फॉर एग्जाम्पल शी लुक फॉरवर्ड टू हर स्कूल फेयरवेल। तो लुक फॉरवर्ड, ये दो फ्रेजेस को मिला के एक वर्ब बना है। ब्रॉट अप भी आपके पास एक अलग वर्ब है। ठीक है, रेगुलर वर्ब। रेगुलर verbs are the verb whose past tense versions are formed by adding an ed and d in the sentences. रेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका जो पास्ट टेंस है, जिसमें आप ईडी या डी यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे वॉक्ड, यूज्ड, वॉच। अब ये इनमें से मैं डी या ईडी लगाती रहूँगी तो ये क्या बन जाएंगे, रेगुलर वर्ब बन जाएंगे। जबकि अगर मैं इर्रेगुलर वर्ब की बात करूँ तो उसमें पास्ट टेंस बनाने के लिए मुझे उसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। लाइक अगर टेक है तो मैं इसको टेक्ड ईडी नहीं लगाऊंगी, मैं इसको टुक करूँगी सेकंड फॉर्म के लिए। अगर मेक है तो मैं मेक को MEKED मेक्ड नहीं करूँगी, मैं MADE बनाऊँगी। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होगी। जिस तरह टुक है तो टुक की टेक, टुक और टेकिन हो जाएगी। तो इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। सो व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड that modifies a verb, an adjective, a clause or another adverb. Adverbs provide more information in a sentence by modifying another word. Means verb में किसी काम में अगर हम एडिशन कर देते हैं या verb की मीनिंग में अगर कुछ ऐड कर देते हैं, that is adverb. For example, the adverb quickly in the sentence Jeremiah ran quickly tells us that Jeremiah ran with high speed. यानी someone is running, लेकिन अगर वो रनिंग कर रहा है क्विकली तो क्विकली उसकी स्पीड को बता रहा है। वो इटसेल्फ एक वर्ब है लेकिन उसकी मॉडिफाइंग क्या कर रहा है, क्विकली। ठीक है, नाउ एडवर्ब्स की भी कुछ टाइप होती हैं हमारे पास। जैसे अ कंजक्टिव एडवर्ब is an adverb that acts like conjunction. A conjunction adverb is used to connect two clauses or two sentences together. जैसे however, ठीक है, I went to the store to buy new shoes. However, the store was already closed when I got here. ठीक है, अब शॉप तो है, स्टोर तो है, लेकिन वो क्लोज्ड है। ठीक, या वहाँ पे जाते में मुझे डिले हो गया, वट एवर द थिंग इज। तो उन दो सेंटेंस को जो है वो ज्वाइन कर रहा है वर्ड हाउ एवर। तो हाउ एवर इज अ कंजक्टिव एडवर्ब। नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक a number of adverbs are used to describe the frequency of an event. By doing so, these adverbs describe how often something happens. For example, constantly, frequently, occasionally, sometime, usually, never, always, rarely, daily, weekly, monthly और yearly. तो ये सारे क्या हैं,
जो कि बता रहा है कोई भी एडवर्ब किस हिसाब से हो रहा है फ्रीक्वेंटली, कि वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है या वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है या मंथली या ईयरली या कभी कभी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस दैट हाउ समथिंग हैपन्स। जैसे अगर वो उसके सेंटेंस के आगे हम ली लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एंग्रीली, क्यूशियसली या हंग्रीली, नाइसली, स्लोली, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, बता रहे हैं उसके मैनर को, कि अगर वो बात कर रहा है तो वो सॉफ्टली कर रहा है या वो लाउड, वो अगर स्पीच कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा लाउडली कर रहा है, ठीक है, या वो बात कर रहा है तो वो एंग्रीली कर रहा है। तो ये उसके मैनर को बता रहा है, उसका तरीका बता रहे हैं बात करने का, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। नाउ द एडवर्ब ऑफ डिग्री। जनरली एडवर्ब ऑफ डिग्री डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और अ क्वालिटी। किसी भी एक्शन की या किसी भी क्वालिटी की हम क्या बता रहे होते हैं, इंटेंसिटी बता रहे होते हैं। कि दीज एडवर्ब्स आर ऑफन यूज्ड इंटेंसिफायर्स टू डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल वेरी, रियली, एक्सट्रीमली और टू मच, क्वाइटली, ठीक है। तो ये सारे बता रहे हैं कि वो किस हद तक है वो चीज़, कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, एक्सट्रीम पर है, लाइक दिस, बहुत कम है, लीस्ट है, मच, मोर, मस्ट, ये सारे आ जाएंगे किसमें, डिग्रीज में। नाउ एडवर्ब ऑफ अ प्लेस, इसके नाम से पता है कि जो भी किसी भी प्लेस की बात कर रहा हो, फॉर एग्जांपल आउटसाइड, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड या नॉर्दर्न एरियाज, लाइक दिस। तो ये सारे क्या हैं, प्लेस बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसमें इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स प्रोसीड। द फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी एडजेक्टिव। An adjective is a part of a speech that can be used to describe or provide more information about noun or pronoun. ठीक है, that is a subject in a sentence. Adjectives found after the verb before the noun it modifies. ठीक है, adjectives जो है वो क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें बता रहा होता है किसकी, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की, जो कि वर्ब से पहले आता है, फाउंड आफ्टर द वर्ब और बिफोर द नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैट, हाउ फैट इज़ इट। तो ये सारा, ही इज़ अ पर्सन, बट हम ये कहें कि ही इज़ अ फैट पर्सन या ही इज़ अ फैट मैन। तो एक सेंटेंस की या नाउन की जो है वो क्वालिटी बता रहा है वो, कि वो किस किस्म का है, ठीक है। लाइक ब्यूटीफुल है, ट्रायंगुलर है, चाइनीज़ है, ये सारे एडजेक्टिव्स को शो करेंगे। अच्छा, एडजेक्टिव्स में हमारे पास फॉर्म्स भी होते हैं और डिग्रीज भी होती हैं। जैसे अगर मैं पहले डिग्रीज की बात करूं, जैसे मैंने इससे पहले भी एडजेक्टिव में डिग्री डिस्कस की थी, अब यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बताते हैं। 3 हमारे पास स्टेट होती हैं इसकी। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, या जिसको हम एब्सोल्यूट फॉर्म कहते हैं, या जिसको फर्स्ट फॉर्म हम कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है कंपैरेटिव, और थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास सुपरलेटिव। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं, इट इज़ अ फॉर्म use an adjective used in the original form. For example, this book is interesting. This form of adjective used when there is no other subject to be compared. जहाँ पे comparison ना किया जा रहा हो, एक ही चीज़ की बात हो रही हो, वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री मतलब 2 चीज़ों का या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो, जहाँ पे जैसे द बुक आई रीड yesterday was more interesting देन वन आई रीड टुडे। अब यहाँ पे 2 बुक हमने रीड की, एक कल और एक आज, लेकिन हम इसमें कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, मोर इंटरेस्टिंग देन बिफोर ना, यानी कि जो मैंने पहले पढ़ी थी ये वाली उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर आ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ, मतलब यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यहाँ पे लीस्ट की हम बात कर रहे हैं। जैसे द फैंटेसी नॉवल इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर रीड। अब सारी बुक में जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो कौन सा था, वो फैंटेसी नॉवल था, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग पे चला गया। यानी पहले क्या हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, फिर मोर इंटरेस्टिंग हो गया, फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग हो गया। अब जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है पूरी हमारे पास ना, दैट शुड बी इन डिटेल ऑल्सो। वो फिर हम किसी और उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी आपसे। अच्छा जी, टाइप्स होती हैं एडजेक्टिव की कुछ हमारे पास, लाइक पॉसेसिव, इंटेरोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड कंपाउंड। नाउ व्हाट इज़ पॉसेसिव एडजेक्टिव, माय जैसे पोजीशन बता रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी शो कर रहा है कि ये चीज़ पोजीशन को शो करिए, पोजीशन ऑफ क्वालिटी, माय, योर, हिज, लाइक दिस, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो यहाँ पर भी आपके पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में सवाल हो रहा है, हुज, व्हाट एंड विच, लाइक करके, ठीक।
डिमॉन्स्ट्रेटिव में कोई चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि जैसे दिस इज़ बिलोंग्स टू या दैट या दीज दोज, ये सारे क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव बेसिकली नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताती है. Then the sixth part of speech we have is preposition. A preposition is a word used to link noun, pronoun or phrases of two words within a sentence. Preposition एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन को लिंक करने के लिए एक सेंटेंस में या फ्रेज में यूज हो रहा होता है. They act to connect the people, objects, times and locations of a sentence. Prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of the noun. जैसे I prefer to read in the library. ठीक है, अब लाइब्रेरी और रीडिंग के बीच में या I के बीच में जो रिलेशन हम कह सकते हैं, जो कनेक्शन तो हम नहीं कह सकते, जिससे रिलेशन लाइक इन कि मैं अंदर बैठ के पढ़ूंगी, डेफिनेटली लाइब्रेरी के बाहर बैठ के नहीं पढ़ूंगी. लाइक ही क्लाइम्ड अप द लैडर टू गेट ऑन टू द रूफ. अब वो लैडर के ऊपर चढ़ा, अब अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दिस इज एन ऑल्सो रिलेशन. और फिर वो कहाँ जा रहा है, छत पे जा रहा है. ठीक, तो यहाँ पर वर्ड है इन, अप या ऑन टू, ये सब प्रीपोजिशन को शो कर रहे हैं. ठीक, प्रीपोजिशन की भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द टाइम प्रीपोजिशन इंक्लूड्स एट, ऑन, इन, बिफोर एंड आफ्टर. दे आर यूज टू हेल्प इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंड, हैपेंस और विल हैपन, यानी कोई काम होने वाला है या हो चुका है, किस टाइम पर हुआ है, इसको शो कर रहा होता है. जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 4th 1982, आई वॉज बॉर्न इन 1982, आई वॉज बॉर्न एट एग्जैक्टली 2 AM. अब यहाँ पे देखें, एक ही सेंटेंस के साथ मैंने तीन जो है वो प्रीपोजिशन का यूज़ करके दिखाया है. जैसे जहाँ पर मैंने जुलाई 4th मेंशन किया, एयर के साथ वहाँ मैंने ऑन यूज़ किया. जहाँ मैंने सिर्फ एयर यूज़ किया वहाँ पे मैंने एन, इन का यूज़ किया है. और जहाँ मैंने टाइमिंग बताई है वहाँ मैंने एट का यूज़ किया है. तो यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस है तीनों में. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी टू कन्फ्यूज मैटर्स अ बिट, द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस टू इंडिकेट टाइम, ऑन, एट, इन आर ऑल्सो मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन टू इंडिकेट पोजीशन भी बता रहे होते हैं. हाउएवर द रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट. अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ ऑन द टेबल, द डॉग्स आर इन द कैनल, या वी कैन मीट एट द क्रॉसवर्ड्स. अब यहाँ पे ऑन, इन और एट बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेस बता रहा है कि कैट जो है वो टेबल के ऊपर है, या डॉग जो है वो कैनल के अंदर है, या हम जो है वो मिलने वाले हैं क्रॉस रोड के उस तरफ. तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को शो कर रही हैं. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट की तरफ. लाइक प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट आर quite easy to understand as they are less abstract than preposition of place and time. जैसे they describe how something or someone moves from one place to another. यानी ये बता रहा होता है कि मूवमेंट उस आदमी की या उस चीज़ की किस तरीके से हो रही है. ये थोड़ा सा ईजी होता है समझने में. लाइक he has gone on vacation to France, यानी कि वो वेकेशन के लिए जा रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है, कहाँ हो रही है, फ्रांस हो रही है. तो यहाँ पे हमने टू का वर्ड यूज़ किया. फिर है might travel across America ऑन हिज मोटरसाइकिल, यानी वो थ्रू आउट अमेरिका घूम रहा है ऑन हिज मोटरसाइकिल. तो यहाँ पे अक्रॉस जो है वो आपके पास प्रीपोजिशन है. ऑन इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन. ठीक है, नाउ द सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजक्शन. अ कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू कनेक्ट वर्ड, phrases, clauses or sentences. Conjunctions are considered to be invariable grammar particle and they may or may not stand between items they conjoin. Conjunction parts of speech है जो कि वर्ड को, सेंटेंसेस को, फ्रेज को या क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए यूज़ होता है. जैसे इसकी कुछ टाइप्स हम समझ लेते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जो कि हम सबऑर्डिनेटर्स के तौर पे यूज़ करते हैं. दीज कंजक्शन जॉइन द डिपेंडेंट क्लॉज टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जॉइन करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. लाइक मेन क्लॉज को, वर्ड को, जॉइन को, मेन पार्ट ऑफ स्पीच को जॉइन कर रहे होते हैं सेम सिंथेटिक के ज़रिए. नाउ
कोरिलेटिव कंजक्शन की अगर हम बात करें तो दीज कंजक्शंस कोरिलेट वर्किंग इन पेयर्स टू जॉइन फ्रेजेस और वर्ड्स दैट कैरी इक्वल इम्पॉर्टेंस विद इन अ सेंटेंस। ठीक है, कोरिलेशन बता रहे होते हैं ये। रूल्स क्या हैं कंजक्शन के? कंजक्शंस आर फॉर कनेक्टिंग थॉट्स, एक्शंस, आइडियाज़ एज वेल एज नाउन्स। ठीक है, अब यहाँ पे थॉट्स भी कनेक्ट हो सकती हैं, एक्शंस भी और आइडियाज़ भी और नाउन भी। एंड अदर पार्ट ऑफ स्पीच फॉर एग्जाम्पल एंड द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो, जैसे मैरी वेंट टू द सुपर मार्केट एंड बॉट ऑरेंजेस। मैरी जो है वो सुपर मार्केट गई और क्या लेकर आई? ऑरेंजेस। तो एंड जो है वो दो सेंटेंसेस को जॉइन कर रहा है। ठीक, कंजक्शंस आर, अब दूसरा रूल क्या है? कंजक्शंस आर यूजफुल फॉर मेकिंग लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी मेड पैनकेक्स, एग्स एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ एक और कहाँ आ गया? जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं, जैसे वी मेड पैनकेक, एग एंड कॉफ़ी, तो यहाँ पे एंड इज ऑल्सो आ कंजक्शन। थर्ड रूल इसका क्या है? व्हेन यूजिंग कंजक्शन मेक श्योर दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ योर सेंटेंस एग्री। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क बिजीली येट आई एम केयरफुल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एग्रीमेंट की बात आ जाती है कंजक्शन में, कि जैसे मैं बहुत मसरूफ़ हूँ येट आई एम केयरफुल, यानी मैं बहुत मसरूफियत से काम कर रही हूँ बट मैं एहतियात से काम कर रही हूँ। तो येट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। डज नॉट एग्री, आई वर्क बिजीली येट केयरफुली शोज द एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये लिस्ट दी गई है कंजक्शन की, एंड, एज, बिकॉज, बट, फॉर, जस्ट, एज, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, सो, वेदर, येट, ये सारे क्या हैं? कंजक्शन हैं। ये कुछ एग्जाम्पल कंजक्शन की बताई गई हैं, जैसे आई टायर्ड टू हिट द नेल बट हिट माई थंब इंस्टीड। तो ये सब सेंटेंसेस में यूज़ बताए गए हैं इन्हीं कंजक्शन ऑफ लिस्ट के। ठीक है, लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड को कहते हैं दैट इज़ ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड। लाइक अब यहाँ पर फीलिंग्स को शो कर रहा होता है ये बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल से जैसे पता चल जाएगा ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, अब ओ जो है वो हमारी फीलिंग्स को शो कर रहा है। ओ दिस लुक्स बैड, वाओ दैट बर्ड इज़ ह्यूज, या ओ रियली आई डोंट नो अबाउट इट। तो ये सारे क्या है? हमारी फीलिंग्स को शो कर रहा है, सडन फीलिंग्स, इमोशंस को। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है? फीलिंग्स वाला हिस्सा है, इंटरजेक्शन। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके टाइप्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आप मुझे कमेंट और फीडबैक भी दे सकें इसके एरर्स और इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।